Are you not entertained? Ladies and gentlemen, are you not entertained? मैं कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा परेशान था लेकिन yes, their defense was really nice. The keeper was on steroids. Are you not entertained? Ladies and gentlemen, are you not entertained? Bismillah Rahman Rahim. Welcome to Football Top State. It's a wonderful day being an Arsenal fan. It's a wonderful European week being an Arsenal fan because I will be very fair and honest about my opinion on this game. Initially, I thought that Leverkusen, although they don't have those main players that they used to have when they won the Invincible season, players like Florian Wirtz, players like Granit Xhaka, some of those players are still available, like Grimaldo, Alex Garcia, they're still available. But players like Florian Wirtz, I just told you, and Granit Xhaka, and Victor Boniface, such key players that they used to have back in the days when they won the Invincible title. वो ना होने के बावजूद भी मुझे लगा कहीं ना कहीं कि यार बायर लेवरकुसन इज अ वेरी गुड टीम और they're struggling in La Liga. They were struggling in La Liga in the first half of the season, but nowadays they are doing better in La Liga. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. So मेरे ओपिनियन में ये गेम मुझे थोड़ी ट्रिकी लग रही थी because they defended really well against us at their own home. और जब वो हमारे होम पे भी आए थे तो we had to score two absolute worldies to win that match and have a clean sheet. समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना with Raya having one of the best seasons, one of the best saves of the season. गोल्स पे और उस पे तो मैं आगे बात करता हूँ लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैं थोड़ा परेशान था लेकिन Arteta proved me wrong, the boys proved me wrong, the football game proved me wrong. I think everything from a minute first to minute last 90 minutes like it was a perfect game. Yes, their defense was really nice. The keeper was on steroids. But Emirates as is goal, bro. It was a bazooka. It's not a bazooka shot, भाई. सीधी सी बात है यार. हाफ वॉली पे वो चांस मारा, बूम गोल ब्रो, वर्ल्ड क्लास गोल. एजे फाइनली हमें अब लग रहा है और खुशी भी इस बात की हो रही है वी आर फाइनली अनलॉकिंग एजे. आगे अगर हम बात करें तो डेक्लन राइस का एक बहुत ही ब्यूटीफुल कर्लर साइड पे लो ड्रिवन किस्म का एक शॉट मारा. कीपर कुछ भी नहीं कर पाया उसके अगेंस्ट. डेक्लन राइस के बारे में जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है. वी ऑल नो सिर्फ मीडिया को हाई बनानी होती कि काइसेडो इज अ बेटर प्लेयर देन डेक्लन राइस. काइसेडो ने दूसरे गोल के लिए अपनी टीम के लिए मिस्टेक किया फॉर पीएसजी को दूसरा गोल करने दिया अपनी मिस्टेक की वजह से. उसी वक्त आर्सेनल के प्लेयर डेक्लन राइस ने दूसरा गोल आर्सेनल के लिए स्कोर किया. सो जमीन आसमान का फर्क है दोनों प्लेयर्स के कैलिबर में. डेक्लन राइस ऑब्वियसली टेक्स दी चेरी ऑन द आइसिंग फॉर मी. तो ये डिबेट तो खैर साइड पे. हम अगर थोड़ी लाइनअप्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द गेम. लेट्स सी एंड फाइंड इट आउट. अगर हम लाइनअप्स की बात करें तो इट वाज अ 4-2-3-1 सेटअप बाय मिकेल आर्टेटा. डेविड राया, द गोलकीपर बेन वाइट. आई थिंक ही हैड एन ओके गेम. उसके अलावा विलियम सलीबा, गैब्रियल, एंड उसके आगे अगर हम देखें तो पियर कापी. आई थिंक ही हैड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स इन एन आर्सेनल शर्ट representing himself in the UEFA Champions League. आगे चलें तो Martin Zubimendi, I think he was perfectly fine. Declan Rice is Declan Rice, world class performance everywhere on the pitch. Every inch, every grass on the pitch was covered by Declan Rice in this game. Everett as if for me the man of the match of this game, and I think he had a perfect performance. Bukayo Saka was playing really well with his passing and his distribution. Trossard was trying to try things, or trying to do something. He was trying some new things, some new tactics for that thing. He wasn't efficient enough, and Victor Gyökeres had a decent game. If we talk about statistics, are still having an XG of 1.75, a big chances 1 for each, total shots 21, as I told you, and the goalkeeper saves were 2, corner kicks 10, fouls 4. As I told you, the defense was so packed, it was so good कि हमें मतलब स्पेस ही नहीं मिल रही थी कि उनके हम डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकें. We had to score 2 absolute world class goals in order to snatch away that victory from Bayern Leverkusen. क्योंकि अब जैसे हम लोग सेकंड हाफ, जैसे हम लोग फर्स्ट हाफ में थोड़ा डीप जा रहे थे बिफोर एजेस गोल, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी एंग्जाइटी बिल्डअप होना शुरू हो रही थी. बट एजे के गोल के बाद इट वाज ऑल सॉर्टेड आउट. तो आगे अगर मैं उसके बारे में बात करूं, गेम प्ले के बारे में, मेरे हिसाब से गेम प्ले वाज रियली फाइन. इट्स रियली परफेक्ट विद अटैकिंग काइंड ऑफ फुटबॉल, वेरी मेस्मराइजिंग सेट प्लेस. कॉर्नर किक्स पे हम लोग गोल नहीं कर पाए जो यूजुअली हम गोल करते हैं, लेकिन डजंट मैटर.
तो ये जी आर्सेनल की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा। उसके अलावा अगर मैं दूसरे गेम्स की बात करूं, वेयर इट वाज मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, बर्नार्डो सिल्वा ने ये बहुत बोजो एक किस्म का मोमेंट दिखाया अपना। इतना बड़ा प्लेयर, ऑल्दो आई हेट हिम, ही इज वेरी इरिटेटिंग, लेकिन ही इज अ गुड प्लेयर। एंड बोजो मूवमेंट दिखा के, वो पेनल्टी देके और वो रेड कार्ड लेके, आई थिंक उसने पूरा गेम वहीं पे रैप अप कर दिया था। Omar, What? let me tell you something. I can say one. You want me to say Go home and get the gun. Come on. Go home. Run. Come on. Run. City came up with an equalizer by Erling Haaland, but I think it was too late. Vinicius Junior scores another goal in the 90th minute to make it 2-1 on the night and qualify for the quarterfinals. मैन सिटी का मैं समझता हूँ कि कैरेबो कप का शायद फाइनल वो जीत जाए, आई डोंट नो, मे बी, लेकिन आई थिंक दे आर प्रीटी मच आउट ऑफ ऑल द कप्स, बिकॉज मेरे हिसाब से लिवरपूल भी एफए कप में हरा रही है। अगर आखिरी गेम की बात करें, चेल्सी वर्सेस पीएसजी, चेल्सी के लिए वो मैच, चेल्सी के ग्राउंड पे वो मैच पीएसजी के लिए ट्रेनिंग सेशन से कम नहीं था। 3-0 का स्कोर लाइन। Barcola, Kvaratskhelia and Sani Mayulu, wonderful performance by this team. Wonderful game PSG मेरे लिए. They have become hot favorites yet again for the UEFA Champions League finals at least. जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन अगर फाइनल में आ गए शायद जीत भी जाएं। उसके अलावा सबसे एंटिसिपेटेड गेम की अगर मैं बात करूं, जो कि आप लोगों ने शायद मिस भी कर दिया हो, इट वाज स्पोर्टिंग वर्सेस बोडो ग्लिम्ट। स्पोर्टिंग won 5-0 अगेंस्ट बोडो ग्लिम्ट। 3-0 के डेफिसिट पे था वो फर्स्ट लेग के अंदर। एंड नाउ इन द क्वार्टर फाइनल्स, बोडो ग्लिम्ट का सफर यहीं खत्म होता है चैंपियंस लीग का। आई थिंक दे गेव अस मोमेंट्स ऑफ मैजिक, मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस इन फुटबॉल गेम्स के। एक छोटी टीम, अंडरडॉग टीम ही मेहनत करके यहाँ तक पहुंच सकती है। तो आई थिंक बोडो ग्लिम्ट gave us a very good entertaining kind of football throughout this session in UEFA Champions League, and I wish them all the best in their campaign in the Norway. बाकी आप बताएं, आप अपनी कमेंट्स में राय ज़रूर दें, और प्लीज़ हमें बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपके हिसाब से गेम में क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाज़त। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और अपने इर्द गिर्द नवा के लोगों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और फुटबॉल टॉक्स के साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम।